Hello to class 10 and class 10 we are in lesson number 11 and the lesson is alternative market structures, and under this we have already done perfect competition. So just to make a just short revision, if I say what is perfect competition, so I told you that there is not a perfect definition for perfect competition. Yeah, when we club all the characteristics of perfect competition or the features of perfect competition, we are able to define that what is perfect competition. So if I say you or in examination or in a board exam you get write down the features of perfect competition, so that don't directly start with the features. Give some introduction also, like perfect competition is a market structure there is large number of buyers and sellers, and where the freedom of entry and exit is there, which leads to the normal profit, in long run. Then the homogeneity of product. Perfect competition is that market where products are identical to each other, the product of different firms are close substitute of each other, there no transportation cost and no selling cost. So this is how you people can explain that what exactly perfect competition is. So we have already completed perfect competition and we have done 6 features in perfect competition, and I hope that all the features are clear to you. Now we'll be starting with what? Monopoly market today. Right, so we'll be starting with monopoly market, and monopoly market, again, as I told you that what is monopoly market or what is the meaning of monopoly market, that again can be understood once you understand the characteristics of monopoly market. And in your book, the features of monopoly market has not been explained in detail. They are just they have been explained in short points. So I'll just explain you the way they have been given in the book, because in the exam only they will be asked in the same way only. And so let's start with monopoly market. So let's start with the feature. So the first point given in your book is monopoly market. Introduction, the meaning is also given. So about the meaning we'll discuss after the features, again I'm telling you. So let's do the features first. So monopoly market is first. There are few certain things. Perfect, pure versus perfect competition is written on the top on page number 117, right? So pure versus perfect competition क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं. So pure competition and perfect competition we have already done. So what is pure competition? Pure competition and perfect competition are different from each other in terms of degree. Pure competition has all the features of perfect competition except the perfect knowledge and perfect mobility of factor. ठीक है, ये छोटा छोटा सा एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है. हालांकि दे डोंट आस्क यू, बट इफ इट इज देयर इन द चैप्टर मैं बच्चों को बता देती हूँ ऑलमोस्ट कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज लाइक. सो प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन अगर आप देखो कि शब्द में कि प्योर एंड परफेक्ट, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस प्योर और परफेक्ट के बीच में नहीं होता है. प्योर मतलब शुद्ध, परफेक्ट मतलब बिल्कुल जो सटीक हो. तो एक तरह से लगभग काफी सेम सेम वर्ड्स हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्योर कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन के सारे फीचर्स होते हैं. प्योर कंपटीशन हैज ऑल द फीचर्स ऑफ परफेक्ट मार्केट, लेकिन इसमें से 2 फीचर्स होते हैं जो नहीं होते हैं. आप ठीक है, आई एम रीडिंग अगेन, यू कैन आल्सो सी इन योर बुक. प्योर कंपटीशन हैज ऑल द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एक्सेप्ट परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर. सिर्फ इसमें 2 फीचर्स नहीं होंगे परफेक्ट कंपटीशन के, वो होंगे आपके दिस परफेक्ट नॉलेज. एक तो प्योर कंपटीशन परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है बायर्स और सेलर्स को मार्केट कंडीशंस के बारे में, right? So buyers and sellers do not have perfect knowledge about the market conditions. And second is that perfect mobility of factors of production is not there. That is, the factors of production, that is land, labor, capital, entrepreneur, they do not have a perfect mobility trait in them, that they don't have that quality in them. Pure or perfect competition is rare in the real world, but the model is important because it helps in analyzing industry or market. So actually में perfect competition का existence possible है ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारी की सारी firms homogeneous products बना रही हैं, या सारे लोगों को चाहे buyers है चाहे sellers है उनको perfect knowledge है market conditions के बारे में. It's not possible. या transportation cost और selling cost है ही नहीं. It's not possible, right? So actually बोला जाता है कि pure competition की existence है ही नहीं.
ठीक है, या परफेक्ट कंपटीशन की एग्जिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि प्योर और परफेक्ट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो दोनों की एग्जिस्टेंस एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में होती नहीं है, फिर भी इसको पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है, इसका एनालिसिस किया जाता है। तो ठीक है, तो प्योर और परफेक्ट कंपटीशन के बारे में इतना ही आपकी बुक में दिया हुआ, इससे ज्यादा हमको डिफरेंस के बारे में बात कर रही हूँ, तो इतना ही हमको पढ़ना भी है। Now, imperfect competition क्या होता है? Now, see, basically, I told you when we started with the chapter, I told you that basically there is perfect competition. आपको types of market मिलता है and imperfect मिलता है. If you remember, तो perfect तो हम already we have done. The features you know that what is perfect competition. Now, imperfect competition में क्या होता है? ये सारे features नहीं होते हैं. Correct? See, I'll explain you. Imperfect competition is a competitive situation in any market where the conditions necessary for the perfect competition are not satisfied. ठीक है, वही बात बोल रहे हैं, वो जितने फीचर्स यहाँ पे हमने पढ़े हैं वो सारे फीचर्स आपको imperfect competition में नहीं मिलते हैं, right? In other words, it is a market structure that does not meet the condition of perfect competition. In very simple language, if I say, they are saying that it is imperfect competition or imperfect market, imperfect competition is that kind of situation where you do not have the features of perfect competition. Next, जैसे कि they are saying, जैसे कि restricted flow of information on cost and price, कोई information का flow नहीं होगा cost and price का बीच में, जैसे कि हम बोलते हैं कि वहाँ पे perfect knowledge होती है, ठीक है, वहाँ पे किसका एक फीचर है ना perfect competition का, यहाँ पे perfect competition एक फीचर है, perfect knowledge याद होगा आपको, तो यहाँ पे बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज होती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सेकंड, एक्सेसिव पावर ऑफ सम सप्लायर्स, यहाँ पे कुछ सप्लायर्स के पास बहुत ज्यादा पावर होती है इस केस में यहाँ पे, ठीक है, बल्कि हमने आगे पढ़ा था प्राइस टेकर्स, हमने क्या पढ़ा था, प्राइस टेकर्स होते हैं मार्केट में, जो सेलर्स है वो प्राइस टेकर्स है और मार्केट में जो बायर्स है वो प्राइस टेकर्स है। पर यहाँ पे इस केस में क्या है, कुछ सप्लायर्स के पास बहुत क्या होती है, पावर होती है, एक्सेसिव पावर होती है कुछ सप्लायर्स के पास, ठीक है। देन नेक्स्ट, डिफरेंसेस अमंग सेलर्स टू बी कीप द प्राइस हाई, सेलर्स के बीच में इम्परफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स के बीच में क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, बहुत ज्यादा तनाव होगा, बहुत ज्यादा अलग अलग विचार होंगे, प्राइस को किस तरह हाई रखे जाए इस बात को लेकर के। फोर्थ, नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन बाय सेलर अमंग बायर ऑन द बेसिस ऑफ देयर बाइंग पावर, और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, इधर आपके सेलर्स के बीच में डिफरेंसेस होते हैं कि वो बायर के बीच में डिफरेंस करते हैं कि अलग अलग प्राइस कैसे लिया जाए, मतलब यहाँ पे सेलर्स ये कोशिश करते हैं कि अलग अलग बायर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि हम अलग अलग बायर्स से अलग अलग प्राइसेस ले सके सेम गुड के लिए, ठीक है। तो ये इम्परफेक्ट और इसके बीच में ये क्या है, फिर से एक डिफरेंस दिया गया है। तो अगेन ऐसा होता नहीं है कि ये इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि कई बार बोर्ड कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है जो यूजुअली पूछे जाते नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि परफेक्ट कंपटीशन या इनपरफेक्ट कंपटीशन के बीच में डिफरेंस आएगा ही नहीं, आई वोंट से दैट, बट माय ड्यूटी इज टू टीच यू सर्टेन थिंग्स दैट आई हैव टॉट यू। तो अब आपको प्योर कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन के बीच में अंतर मालूम है, और परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन के बीच में भी थोड़ा बहुत जो अंतर हल्का सा दिया गया है, यू आर अवेयर ऑफ दैट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now we are in monopoly market, so I told you the meaning of monopoly market. We will understand once we read the features. Features are not in detail, so we will move with the features. First feature is there is a single seller or producer of a product of a particular commodity. So first feature is a single seller. ठीक है, a single seller of a particular commodity in the market. Again, thus it may call a single firm industry. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अ सिंगल फर्म इंडस्ट्री, ठीक है, या सिंगल फर्म इंडस्ट्री बोलते हैं। पहले फर्म और इंडस्ट्री के बीच में अंतर समझ लीजिए। फर्म और इंडस्ट्री के बीच में अंतर क्या है, बहुत सारी फर्म जब मिल जाती हैं, बहुत सारी जब फर्म मिल जाती हैं तो क्या बन जाती है, इंडस्ट्री बन जाती है, ठीक है। बहुत सारी फर्म जब मिल जाती हैं तो क्या बन जाती है, एक इंडस्ट्री बन जाती है। तो फर्म के बीच में ये अंतर है कि बहुत सारी फर्म से एक इंडस्ट्री बनती है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करूं मोबाइल फर्म्स के बारे में बात करूं, तो सारे के सारे मोबाइल फर्म्स को अगर मैं जोड़ दूं, आपका वीवो हो गया, आई डोंट नो मच नेम्स, ठीक है, लेनोवो हो गया, नोकिया हो गया, देन यू हैव सैमसंग, एमआई हो गया,
देखिए और भी होंगे, ये आपके एप्पल हो गया, ये सारी किसकी कंपनीज है, एप्पल की कंपनीज है, सॉरी मोबाइल की कंपनीज है। तो इन सब फर्म से क्या बन जाती है, आपकी इन मोबाइल इंडस्ट्री बन जाती है। आई होप अब आपको फर्म और इंडस्ट्री के बीच में अंतर मालूम है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ फर्म एंड इंडस्ट्री। तो बहुत सारी फर्म्स को जोड़ करके एक इंडस्ट्री बनती है, लेकिन वो सारी की सारी फर्म्स फिर एक ही प्रोडक्ट की होनी चाहिए, जैसे कि मोबाइल की सारी फर्म्स जुड़ करके मोबाइल इंडस्ट्री बन जाएगी। तो फर्स्ट इज सिंगल सेलर, अ सिंगल फर्म इंडस्ट्री, राइट। अ सिंगल सेलर से क्या मतलब है कि मोनोपोली मार्केट में होता क्या है कि, तो इसका मतलब क्या है कि मोनोपोली मार्केट में कोई भी एक प्रोडक्ट का एक ही फर्म होती है, उसको प्रोड्यूस करने वाला एक ही होता है। ठीक है, तो पहले तो जो मोनोपोली मार्केट में एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है, इसे हम कहते हैं क्या है, उसको हम कहते हैं मोनोपोलिस्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी याद रखिएगा, जस्ट रिमेंबर दिस, देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर इन द मोनोपोली मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट, तो उसके प्रोड्यूसर को हम क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो मोनोपोली को जो रन कर रहा होता है वो मोनोपोलिस्ट होता है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि एक सिंगल सेलर होता है इस तरह के मार्केट में, एंड द फर्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिंगल फर्म इंडस्ट्री। इसके अलावा व्हाट हैज बीन टोल्ड इन योर बुक, इससे ज्यादा मैं आपको बता तो मैं दूंगी, लेकिन दस इट मे बी कॉल्ड अ सिंगल फर्म इंडस्ट्री। चलिए थोड़ी सी और बातें मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया गया है, ज्यादा वो पूछताछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि फीचर्स बता दो, तो आपको फीचर्स बता देंगे। हो सकता है वो ये क्वेश्चन पूछ ले, व्हाई डू अ सिंगल monopoly is called a single firm industry, then you are going to say single firm industry because a single seller of a product is there. ठीक है, नाउ थोड़ी सी और बातें बता देते हैं आपको। सी अब होता क्या है, when a single seller is there in the market, that means we can take an example, suppose मोबाइल फोन की अगर सिर्फ हम बोले कि सिर्फ एक ही फर्म है जो प्रोड्यूस कर रही है, वो की सैमसंग है, ठीक है, और कोई भी मोबाइल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये तो पहले कहलाएगा मोनोपोलिस्ट। ऐसे प्रोड्यूसर को हम कहते हैं मोनोपोलिस्ट। ठीक है, और दूसरा हम क्या बोलेंगे, जो फर्म है वो क्या है, अ सिंगल फर्म इंडस्ट्री है, अ सिंगल फर्म इंडस्ट्री है। अब देखिए दो तीन बातें और समझ लीजिए। When a single seller is there, तो आपको क्या लगता है सिंगल सेलर होने का क्या एडवांटेज हो सकता है? सिंगल सेलर होने का ये एडवांटेज हो सकता है कि फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस पे फुल कंट्रोल होगा, क्योंकि एक सिंगल सेलर है, उसकी मर्जी है, लोगों को उसी से खरीदना पड़ेगा, बिकॉज पीपल नीड मोबाइल फोन्स, सो इट इज देयर majburi that they'll have to go to that person and have to purchase that. That's why he has full control over the prices. It is his wish whether he want to sell the mobile in cheaper prices or he want to sell it at the higher prices. तो ये इसकी अपनी खुद की मर्जी होगी, क्योंकि there is no competition. ठीक है, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि एक मोनोपोली से निकल रहा है, वो क्या है, नो कॉम्पिटिशन, नो कंपटीशन। इस तरह के मार्केट में कोई कंपटीशन होता ही नहीं है। इफ सैमसंग इज देयर प्रोड्यूसिंग मोबाइल फोन्स, सो देयर इज नो कंपटीशन, सो ही हैज टू फेस नो कंपटीशन, देयर इज नो प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई ही इज अ प्राइस मेकर। ठीक है, उसको प्राइस मेकर भी कहते हैं। मोनोपोलिस्ट इज आल्सो नोन एज प्राइस मेकर। Why he is known as a price maker? He is known as a price maker because there is a single firm in the market producing a product which is very needed by all the people. All right, next इसके अलावा क्या हो सकता है, नो कॉम्पिटिशन के अलावा क्या हो सकता है आपका, और बताइए कि मोनोपोली होने से क्या और एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अभी मेरे दिमाग में घूम रहा था, नो कॉम्पिटिशन के अलावा हो सकता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट ये बना रहा है, अगर सैमसंग फोन मोबाइल बना रहा है और वो सिंगल सेलर है मार्केट में, सिंगल प्रोड्यूसर है मार्केट में, तो ऑब्वियसली कोई और फर्म नहीं है, तो सैमसंग मोबाइल का कोई और सब्स्टिट्यूट या मोबाइल का कोई और सब्स्टिट्यूट आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट, और एनी क्लोज तो छोड़ो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट छोड़ो, दूर का सब्स्टिट्यूट भी आपको नहीं मिलेगा। सो दैट इज these are some of the things which I have told you, which is not given in the explanation of this, but ये कुछ चीजें होती हैं, इसके अलावा और भी चीजें हैं, पर वो चीजें मैं आपको बताऊंगी, तो आप इनकी डिटेल भी मैं आपको ज्यादा नहीं बता रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू लिमिटेड बिकॉज इट इज नॉट इन योर सिलेबस, just for the sake of your knowledge I am letting you know these things. So I hope the first feature is clear to you. All right, so we move with the second feature.
What is the second feature? The second feature says there is no close substitute of the commodity. All right, यहाँ पे आ गया there is no close substitute. ठीक है, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में नहीं दी है दोबारा से, तो फिर फालतू का एक्सप्लेनेशन देकर के why to increase the unnecessary burden on you. So there is no close substitute. ये clear है why there is no close substitute? Because no other firm is producing mobile phones, or there is no other firm producing the same product which is produced by a monopolist, right? इसके आगे बोल रहे हैं thus cross elasticity of demand for the commodity is almost zero, right? Thus cross elasticity is zero, इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो हो जाता है. अब क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? ठीक है, अगेन फिर से मुझे बताना पड़ेगा क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, हालांकि आपकी बुक में बताया नहीं गया है. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू नो क्रॉस इलास्टिसिटी, क्लास 10th में इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू नो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ नॉलेज के लिए, क्योंकि अगर आप ये वर्ड यूज कर रहे हो तो यू शुड नो कि है क्या. तो क्रॉस इलास्टिसिटी होता क्या है? सी, अगर हम बात करें कि मोनोपोली नहीं है, सपोज हम मोनोपोली सपोज करो आपके नहीं पढ़ रहे, तो एक बिस्किट की फर्म है, बिस्किट की सॉरी इंडस्ट्री है, तो बिस्किट तो बहुत सारे प्रोड्यूस कर रहे हैं, आईटीसी बना रहा है, ऑलराइट, देन पार्ले भी बिस्किट बनाता है, ठीक है, इधर आपको ब्रिटानिया बिस्किट बनाता है, ठीक है, और भी बिस्किट बनाते हैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा बिस्किट के नाम, ठीक है, मैं ब्रांड ले लेती हूँ, ओरियो ले लो, और क्या क्या है बिस्किट्स, डार्क फैंटेसी, सी आई डोंट, मुझे याद बिस्किट नाम याद नहीं आ रहे, टाइगर आता है ना, 50-50 भी आज बिस्किट आता है, ठीक है. तो हम अभी ये मान लो कि हम मोनोपोली नहीं पढ़ रहे, ठीक है, तो अगर मार्केट में क्या है, इतनी बिस्किट की फर्म्स हैं, तो ये सारी क्या है, एक इंडस्ट्री बन गई, तो ये बिस्किट इंडस्ट्री है, ठीक है. अब क्या है कि अगर मुझको ओरियो पसंद है और डार्क फैंटेसी पसंद है, ठीक है, और अगर मैं इफ आई वेंट टू द शॉप एंड आई आस्क्ड फॉर ओरियो, तो मुझे ओरियो दे दो, आई वांट ओरियो, उसने कहा कि ओरियो तो खत्म हो गया है, तो मैं बोलूंगी तो ओरियो से मिलता जुलता डार्क फैंटेसी है, तो मैं बोलूँगी अच्छा डार्क फैंटेसी दे दीजिए, ठीक है. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए, क्लोज सब्स्टिट्यूट हो गए, क्लोज सब्स्टिट्यूट हो गए. क्लोज सब्स्टिट्यूट इसलिए हो गए क्योंकि ओरियो की जो मेरी नीड है उसको डार्क फैंटेसी पूरा कर सकता है, क्योंकि लगभग काफी सेम सिमिलर भी होते हैं टेस्ट में, तो हमने ये ले लिया सपोज, तो ये क्या क्लोज सब्स्टिट्यूट है. तो हुआ क्या कि एक प्रोडक्ट के ना होने से, एक प्रोडक्ट के ना होने से मैंने उसी तरह का दूसरा प्रोडक्ट लिया, तो ये क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, ठीक है. अब सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, कौन कौन हो गए सब्स्टिट्यूट गुड, ओरियो एंड डार्क फैंटेसी, डार्क फैंटेसी क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, ठीक है. तो एक क्या था, एक नहीं था अवेलेबल, वन सब्स्टिट्यूट गुड, ये दो सब्स्टिट्यूट गुड है, इन दोनों से एक अवेलेबल नहीं था, तो दूसरे मैंने परचेस कर लिया, तो मतलब एक के एब्सेंस में दूसरे की डिमांड बढ़ गई, ठीक है. दिस इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी. जब एक सब्स्टिट्यूट गुड में से एक गुड की डिमांड, एक गुड ना होने की वजह से जो दूसरी की डिमांड पर असर पड़ता है, तो असर क्या हुआ, इसकी डिमांड पे पड़ा, ठीक है. क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात को, मतलब कि अगर इसका ये एब्सेंट है, चाहे मैंने इसको नहीं लिया क्योंकि शॉप में नहीं मिल रहा है, या मैंने इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये महंगा पड़ रहा है, ठीक है, डार्क फैंटेसी से, तो हो क्या रहा है कि एक गुड को, एक सब्स्टिट्यूट गुड को ना लेने की वजह से अगर दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड में फर्क पड़ रहा है, तो इसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है. ठीक है, क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं, ये दिया, इसको क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं. और क्रॉस इलास्टिसिटी का पॉसिबल है जब सब्स्टिट्यूट गुड की पॉसिबिलिटी है, और सब्स्टिट्यूट गुड का पॉसिबल है जब मोनोपोली मार्केट की बात नहीं हो रही है तब. तो क्रॉस इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है, when we don't know, when the due to any reason we are not purchasing one of the substitute good, and due to that reason if you are going for the another substitute good and the demand for that another substitute good is increasing, ठीक है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डार्क फैंटेसी की डिमांड यहाँ बढ़ रही है ओरियो की डिमांड ना करने से. आप ओरियो की डिमांड कोई भी रीजन से आप नहीं कर रहे हो, चाहे आपको मिल नहीं रहा है मार्केट में, चाहे वो महंगा पड़ रहा है आपको डार्क फैंटेसी से, तो when the non demand, when non demand of one commodity leads to the increase in demand of the another substitute good, this is known as cross elasticity, ठीक है. तो ये कह रहा है कि there is no substitute, close substitute तो मौजूद ही नहीं है मार्केट में, तो close substitute मौजूद नहीं है, तो इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी रहेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी जुड़ी होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ, सब्स्टिट्यूट गुड की पॉसिबिलिटी नहीं है, सब्स्टिट्यूट गुड की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, राइट. तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू.
Next is very simple. No new firm can enter the market. नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि कोई भी नई फर्म मार्केट को एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, तो शॉर्ट में बताया, अगर फटाफट बताया, हालांकि ज़्यादा दिया नहीं है, स्टेप मैं आपको बताऊं तो कोई भी नई फर्म मार्केट में इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, और ये रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकते हैं, लीगल भी हो सकते हैं, लीगल मैन मेड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, ड्यू टू लीगल मैन मेड बैरियर्स। ठीक है, तो कुछ बैरियर्स हैं, कुछ रुकावटें हैं जो कि कानूनी है, और मैनमेड का ऑब्वियसली मैनमेड है तो कानूनी है, तो मैनमेड ही होगी, कानूनी है तो उनकी वजह से वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो एंट्री एंड एग्जिट है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब the new firm cannot enter the market, and the reason behind is this, that the reason could be I'm saying not always, the reason could be due to लीगल मैनमेड बैरियर्स। ठीक है, इस मैनमेड बैरियर्स या बैरियर्स के बारे में अगेन देयर इज नो डिटेल, सो ये भी आप चाहो तो ना लिखो, पर मैंने आपको बता दिया है। फोर्थ इज योर द प्रोड्यूसर हैज सब्सटैंशियल कंट्रोल ओवर द प्राइस। अगेन द प्रोड्यूसर हैज control over price, very simple, right? The seller has the substantial control over the price. You know reason why? Because he's a single. He's having a single firm. The monopolist is the single seller out there. So I hope the features are clear to you. And further with the price discrimination. Yeah, price discrimination we'll be doing in the next video. I hope this part is clear to you. And any problem, any questions you want to share or ask with me, you can just message me, text me up. Alright, so I'll be seeing you in the next video, and we'll be moving further with price discrimination. Till then, take care of yourself, stay healthy, stay at home.